بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، اللہ پاک نے خود اس نام کی قسم کھا کے فرمایا، جس گھر میں اللہ کا یہ نام پڑھا جاتا ہے اس گھر میں دولت کی برسات ہوتی ہے اور ہر پریشانی مصیبت ختم ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین اکرام، آج آپ کے سامنے اللہ پاک کا ایک ایسا نام لے کر حاضر ہوا ہوں، اگر انسان کامل یقین کے ساتھ اس کا معمول بنا لیں، پوری زندگی کے اندر کبھی انسان کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ جو بندہ یہ وظیفہ کر لے گا اس کے گھر سے تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کسی انسان پہ اللہ کی جانب سے تنگ دستی آتی ہے تو وہ سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے، سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ یہ بھوکا مر جائے، سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو ذلیل کر دینا ہے۔ اگر انسان صدقے دل کے ساتھ اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ رکھ کے اس نام کا وظیفہ کریں، صرف ایک مرتبہ پڑھ لے، اللہ رب العزت اس انسان کی تمام مشکلات کو ختم کر دیں گے۔ اپنے ہاتھوں پر یہ وظیفہ کر کے آزما کر دیکھو، قرآن پاک کے اندر داخل ہو جاؤ۔ قرآن پاک کے اندر ہر مشکل کا حل اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ سب سے زیادہ مجرب عمل ہے، اس کے اندر طاقت ہے، اس کے اندر راز ہے، اس کے اندر گم ہو جاؤ، دنیا خدا کی قسم آپ کی ہو جائے گی۔ دنیا کے پیچھے گھوم رہے ہو جہاں سے کچھ نہیں ملے گا، اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہو وہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر ملنا ہے تو اللہ کے قرآن سے ملے گا، اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ محترم ناظرین کرام، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن آج کا ہمارا وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی طاقتور نام کے حوالے سے ہے، جس کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس نام کو پڑھنے یا اس کا ورد کرنے کا معمول بنا لیا جائے تو انسان کے تمام دکھ، تکلیف، پریشانیاں، رنج و غم، سب کچھ اللہ تعالیٰ اپنے اس اسم مبارک کی برکت سے دور فرما دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، ایک شخص کو یہ وظیفہ بتایا اور اس نے اس پہ بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کیا تو وہ کہتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت یہ تسبیح پڑھی تو اگلے دن سے اس کی تمام پریشانیاں ختم ہو گئیں، اس کے تمام دولت کے مسائل حل ہو گئے، اس کی تمام مصیبتیں ٹل گئیں۔ ناظرین اکرام، اس وظیفے کی برکت سے ہر قسم کی حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے، لاکھوں کا قرض بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اگر اس وظیفے سے دولت نہ ملے تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ محترم ناظرین اکرام، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ اللہ پاک اپنی برکتیں اور فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے رات کو یہ مبارک نام پڑھ کے سو جائیں، پھر صبح اٹھ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ زندگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیند حرام کر دی ہو، دنیا کا سب سے آسان اور مجرب وظیفہ اللہ تعالیٰ کا وہ صفاتی نام اور سورہ اخلاص کو آپ نے پڑھ لینا ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ معجزے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے اس پوری کائنات میں سب سے آسان ترین یہ عمل ہے۔ یہ ایسا معجزاتی وظیفہ ہے جسے سچے دل کے ساتھ کرنے والے پر دولت عاشق اور مہربان ہو جاتی ہے۔ میرے وہ بھائی جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر ہر جگہ در بدر کی ٹھوکریں کھائی ہیں، ساتھ میں ذلت رسوائی بھی برداشت کرنی پڑے لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، محنت تو کرتے ہیں لیکن کوئی صلہ نہیں ملتا، تو وہ میرے بہن بھائی صرف اور صرف اللہ پاک کی عبادت کریں، اسی سے مانگیں۔ لیکن اللہ پاک سے مانگنے کے لیے کچھ طریقے ہوتے ہیں، اگر آپ صحیح طریقے سے دعا مانگو گے تو آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی، ورنہ دعا رد ہو جاتی ہے، دعا ضائع ہو جاتی ہے۔ آپ یہ وظیفہ کر لیں اور پھر ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق دعا مانگیں تو انشاءاللہ تعالی ہم پوری یقین سے کہتے ہیں کہ آپ لاکھوں نہیں کروڑوں میں کھیلیں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت اور وسعتیں پیدا فرمائیں گے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، بلکہ یہ عمل نہیں ہے، یہ رزق کے خزانے ہیں، ایک وسیع و ریز گہرا سمندر ہے۔ جو بندہ بھی یہ عمل ہمیشہ کرے گا اس کی مستقل عادت بنا لے گا، انشاءاللہ وہ کبھی مال و دولت کی کمی اور تنگی کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ میرے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رحمت و برکت سے وہ ہمیشہ مال و دولت میں ہی کھیلے گا۔ محترم ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صرف ایک نام اور سورہ اخلاص آپ نے اسی طریقے سے پڑھ لینی ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا، پھر انشاءاللہ اس مبارک نام اور مبارک سورت کی برکت سے آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے مسائل جو مال و دولت کے حوالے سے ہے انشاءاللہ وہ سب دیکھتے ہی دیکھتے حل ہو جائیں گے۔ اب آپ کی بڑی سے بڑی حاجتیں بھی جن کا تعلق رزق یا مال و دولت کے حوالے سے ہے یا دنیاوی کسی بھی حوالے سے ہے وہ پوری ہو جائیں گی، پھر چاہے آپ کے مالی حالات خواہ کتنے ہی خراب اور کمزور کیوں نہ ہو، آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے پیسے نہ ہوں، آپ رات کو سونے سے پہلے
इस मुबारक नाम को और सूरह इखलास को पढ़ने के बाद सो जाया करो। ये रोज़ाना आपने रूटीन बनानी है। अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे गैबी असबाब पैदा करेगा कि आपकी हर परेशानी खुद ब खुद दूर हो जाएगी, हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। जिस दिन से आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपका हर आने वाला दिन पहले वाले दिन से बेहतर होता चला जाएगा। इसके कमालात आप खुद देख के हैरान रह जाओगे। गैब से अल्लाह पाक आपके बिगड़े काम संवारते जाएंगे, क्योंकि अल्लाह पाक जब भी किसी इंसान पर अपना फजल व करम करता है तो इंसान की अकल दंग रह जाती है। आपको कोई बीमारी है, घरेलू परेशानी है, दिली तमन्ना है कि आपकी सख्त परेशानियां जल्द से जल्द दूर हो जाएं। बेटियां घर में जवान बैठी हैं, उनकी शादी करनी है, उनकी उम्र ज्यादा हो रही है, उनकी शादी के कोई असबाब फिलहाल नजर नहीं आ रहे। आपकी तमन्ना है कि ये रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाए, शदीद गुर्बत के दिन ख़त्म हो जाए और मेरे पास भी वाफर मिकदार में रिज़्क़ और मालो दौलत की कसरत हो जाए। मुझे भी बेहिसाब किताब मालो दौलत यानी रिज़्क़ मिले। अगर आप कोई छोटा मोटा कारोबार भी करते हैं, वो भी ठीक तरह से नहीं चल रहा, कारोबार में बंदिशें हैं, लोगों ने नजरें लगा दी हैं, जादू कर दिया है। आप भी चाहते हैं कि दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करें और अल्लाह पाक आपको अपनी रहमत से सुकून वाली और ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए, तो आज ये वजीफ़ा कामिल यकीन के साथ पढ़ लें। फिर अपनी खुली आंखों से इंशाल्लाह आप इस वजीफ़े के कमालात देखेंगे। आपके हालात इतनी तेज़ी के साथ बदलेंगे कि लोग आपसे पूछना शुरू कर देंगे कि आपके हाथ कौन सा ऐसा ख़जाना लग गया है। सिर्फ चंद बार पढ़ने से ही अल्लाह पाक नवाजना शुरू कर देता है। अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेंगे, मुस्तकिल पढ़ते रहेंगे, तो आपकी नस्लें तक संवर जाएंगे, जल्द अमीर कबीर बन जाएंगे, इस इलाके की आप एक पहचान बन जाएंगे। तो ये अल्लाह पाक का मुबारक नाम और सूरह मुबारका दोनों ही मालो दौलत और रिज़्क़ के हवाले से बहुत ख़ास अहमियत रखते हैं। ये ऐसे कलाम हैं कि इनको हमेशा पढ़ने वाला इंसान इंशाअल्लाह कभी पूरी ज़िंदगी गुर्बत और मुफलिसी का मुंह नहीं देखता। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपना रहम करम शफकत इस बंदे पर नाजल कर देता है। गुर्बत व इफलास की दलदल से वो बंदा बाहर निकल आता है। इस नाम को जो पढ़ लेता है, उस पढ़ने वाले को दीनी, ज़ाहरी और बातनी दौलत भी नसीब होती है। फिर रिज़्क़ के ऐसे ऐसे असबाब और ऐसे ऐसे तरीक़ों से मिलता है कि किसी बंदे के वहम गुमान में भी नहीं होता। इस नाम को पढ़ने वाले की तमाम ज़रूरियात, परेशानियाँ और तकलीफ़ें जो मालो दौलत और रिज़्क़ के हवाले से होती हैं, वो अल्लाह ताला अपने फजल करम से दूर फरमा देता है। उसके पास रिज़्क़ की ऐसी कुशादगी, बरकत और वसअत नसीब होती है कि मज़ीद मालो दौलत की जो ख्वाहिश है वो भी मिट जाती है। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, इस वजीफ़े को आपने किस तरह करना है? इस वजीफ़े को करने की सिर्फ एक ही शर्त है, वो है कामिल यकीन। क्योंकि जितना आपका यकीन पुख्ता और एतमाद होगा, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिस तरह हम दुनिया के कोई भी काम मुकम्मल यकीन के साथ करते हैं कि हमने ये काम आज शुरू किया है, कल तक हमारा ये काम लाजमी हो जाएगा, इसी तरह आप इस तस्बीह यानी वजीफ़े को भी करें और अल्लाह पाक पर कामिल यकीन और मुकम्मल एतमाद रखें कि मैं ये वजीफ़ा कर रहा हूँ, अल्लाह पाक मुझे इस वजीफ़े में खूब फ़ायदा और बरकत देंगे। तो इसके साथ आपने अपने अपने काम के लिए कोशिश भी करनी है। ये नहीं कि वजीफ़ा करके आप घर में जाके सो जाएं और कहें जी कि हमने वजीफ़ा कर लिया और हमारा काम हो जाएगा। नहीं, आपने कोशिश भी करनी है, सारी कोशिश करके नमाज का भी एहतमाम करना है, सच्चे दिल के साथ अल्लाह पाक से मांगना है। सच्चे दिल से मांगी गई दुआओं में बड़ा असर होता है। जब सच्चे दिल से मांगी गई दुआएं अपना भरपूर रंग दिखाती हैं, तो जो इंसान अपनी दुखों भरी जिंदगी से बिल्कुल मायूस हो जाते हैं, उनकी जिंदगी में भी खुशियों और बहारों के रंग भर जाते हैं। अल्लाह पाक गैब से उनके मसाइल की हल भी पैदा कर देता है। अल्लाह पाक उनकी तमाम मुश्किलात को भी हल कर देता है। तो आपने ये वजीफ़ा करके और कोशिश करनी है कि नमाज का एहतमाम करना है, फिर अल्लाह पाक के ऊपर छोड़ देना है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको वो अता करेगा कि आपकी अकल दंग रह जाएगी। आपने दुआ में भी अपनी औकात देखकर नहीं मांगना, बल्कि अपने रब की शान देख के मांगना है, क्योंकि अल्लाह पाक जब अता करने भी आता है तो पूरी कायनात का जितना रिज़्क़ है वो भी आपको अता कर सकता है। अल्लाह पाक ना देने पे आए तो आपको कोई अता नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह पाक से मुकम्मल यकीन और एतमाद के साथ मांगा करें। ये वजीफ़ा आप फजर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं, ज़ोहर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं, किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं। लेकिन अगर रात को इशा की नमाज के बाद सोने से पहले बिस्तर पर लेट कर आप इस अमल को करेंगे, उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उस वक़्त एक तो बिल्कुल तन्हाई होगी, आपको कोई तंग करने वाला नहीं होगा,
मुकम्मल यकसुई आपको मिलेगी। आप एक मामूल बना लें कि आप रोज़ाना रात को सोने से पहले आपने इस अमल को करना है। आपने वक़्त तब्दील नहीं करना। मसलन रात को सोते वक़्त आप ये अमल करेंगे तो आपने उसी वक़्त ही इस अमल को करना है। आपने 5 वक़्त की नमाज भी अदा करनी है और सबसे पहले आपने बावज़ू हो जाना है, बिस्तर पर लेट जाना है और उसके बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ आप कोई भी पढ़ सकते हैं, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या छोटे से छोटा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। दुरूद शरीफ को आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। वजीफ़ा शुरू करने से पहले तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज़ किया हुआ है, जिसमें रोज़ की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज़्यादा असर होता है। और नाज़रीन इकराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़ने के बाद की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं होती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में आप अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद ज़रूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला हमारा जो काफिला है उसका हिस्सा आप भी बन जाएंगे, ताकि हमारे जो बताए हुए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप भी ज़िंदगी को आसान बना सकें। बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने मसाइल बयान करते हैं, तो इन सब के लिए दुआएं करवाई जाती हैं जिनसे लोगों के मसाइल हल होते हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन में बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं वजीफे की जानिब। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद मुकम्मल खामोशी, सुकून और इत्मीनान से आपने अल्लाह पाक का बाबरकत नाम या गनीयो 111 बार पढ़ लेना है। पूरी तवज्जो के साथ आपने अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या गनीयो पढ़ना है। नाज़रीन इकराम, आपने या गनीयो 111 मरतबा बिल्कुल दिल की गहराइयों से आपने इसको पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद आपने अल्लाह पाक का दूसरा बाबरकत नाम है या बासित। या बासितो भी आपने मुकम्मल दिल की गहराइयों से 111 मरतबा पढ़ना है। 111 मरतबा या बासितो पढ़ने के बाद आपने 11 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ लेना है। ये सूरह इखलास ऐसी ताकतवर सूरह मुबारक है, ये रिज़्क़ के हवाले से, दौलत के हवाले से, कसरत रिज़्क़ के हवाले से, वसअत रिज़्क़ के हवाले से बहुत ही ताकतवर सूरह मुबारक है। ये सूरह मुबारक अल्लाह ताला की वहदानियत को बयान करती है कि वो वाहिद मालिक है, उसका कोई शरीक नहीं है, वो ला शरीक है, ना उसका कोई बेटा है, ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद है और उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। तो आपने अल्लाह पाक के 2 मुबारक नाम और सूरह इखलास को पढ़ते वक्त अपने जहन में जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपका मकसद है, उसको तसव्वुर में रखना है और इनको पढ़ना शुरू कर देना है। और उसके बाद आपने सिर्फ 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ना है, क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से आपके जितने भी जो सगीरा गुनाह हैं वो माफ़ हो जाएंगे, आपके सारे दिन के जो गुनाह हैं वो माफ़ हो जाएंगे और जब गुनाहों की माफ़ी मिल जाएगी फिर आप पर अल्लाह ताला की करम नवाजियाँ होना शुरू हो जाएंगी। तो उलमा इकराम ने लिखा है कि अस्तगफिरुल्लाह कम से कम 300 मरतबा पढ़ें तो वो कसरत में शुमार होता है। इसलिए कहा जाता है कि कसरत से अस्तगफिरुल्लाह का विर्द किया करें। तो कम से कम आप 100 मरतबा पढ़ लें या 300 मरतबा पढ़ लें, वो आपकी मर्जी है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप कोशिश करें कि 300 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, उसके बाद दोबारा फिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक बात अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें कि इस अमल के दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, मुकम्मल खामोशी, तसल्ली और सुकून के साथ इस अमल को करना है। आखिर में आपने दुआ भी अल्लाह ताला से मांगनी है कि या अल्लाह, जो भी मेरी मुश्किलात हैं, जो भी मेरी परेशानियां हैं, तू देने वाली ज़ात है, तू दाता है, तू अता करने वाला है। मैं फ़ानी हूँ, तू लाफ़ानी है, तू अज़ल से है, तू अबद तक है, तू वो रब है जो समुद्रों की गहराइयों में बसने वाले कीड़ों को भी रिज़्क़ देता है। मैं तो तेरी मखलूक हूँ। ऐ अल्लाह, तो सबका बादशाह है। ऐ अल्लाह, तो हर चीज़ पे कादर है। तो मेरी मुश्किलात को दूर कर दे, मेरी परेशानियाँ दूर कर दे, मेरी दुआएं कबूल कर ले। जो भी मेरे ऊपर बंदिशें हैं, जो भी मेरे ऊपर रुकावटें हैं, वो दूर कर दे। ऐ अल्लाह, तो हर चीज़ पे कादर है। और कोशिश करें कि दुआ में भी आपने दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा कि हमारे सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए, हमें गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और जो लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक फौत हो चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा दे और हमें हदायत वाले रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा दे, हमारे रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा दे और हमें 5 वक़्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मज़ीद इस तरह के इस्लामिक वज़ाइफ को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।
محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھا کریں۔ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔